Hello everyone. Today I am going to discuss about the country selection. This is a part of international business. I am taking a reference from Daniel and Rookberg and chapter number 13 in that book. Let's start with the topic. When we discuss about the country selection, this is a very important part of international business ki how we select the countries. When we move towards the other countries, we are having so many options, so many alternates in our hand, but we have to choose the best alternate, like in which country we are going for the trade. So that let's start with this. Companies lack resources to take advantage of all international opportunities. When we discuss about the company selection, here on the basis of all the resources the company is having, as well as on the basis of opportunity, the companies decided about the things. Choice of where to operate an important business strategy. Appealing countries are those with similar economic, political, culture and geographical condition. जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, कंपनी उस कंट्री में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कल्चर इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑलमोस्ट सेम हो, सिमिलर हो. कंपनी मस्ट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एंट्री इनटू पोटेंशियल कंट्रीज. हमें क्या करना चाहिए, जो कंपनीज हैं उन्हें डिटरमाइन करना चाहिए सीक्वेंस, एक अल्टरनेट्स लेके चलने चाहिए कि दूसरी कंट्री में हम कैसे एंटर हो सकते हैं. सेकेंड वन इज सेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट ऑफ एक्सपेंशन अमॉन्ग द कंट्रीज. सेकेंड हम ये देखेंगे कि जो हमने रिसोर्सेज हैं उनको हम एलोकेट कैसे करेंगे और एक्सपेंशन के हमारे कितने चांसेस वहाँ पे होंगे. नेक्स्ट है चूजिंग मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन साइट्स एंड जोग्राफिकल स्ट्रेटजी. कंपनी मस्ट डिटरमाइन वेयर टू मार्केट एंड वेयर टू प्रोड्यूस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे उसे मार्केट करना है और कहाँ पे उसे मैन्युफैक्चर करना है उस चीज़ को. डिसीजन ऑन मार्केट एंड प्रोडक्शन लोकेशन में भी हाईली इंटरडिपेंडेंट. यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लोकेशन क्या होगा, हमें मार्केटिंग कहाँ करना है, सेल हमें कहाँ करना है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट वहाँ पे रहती हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ओवरऑल जोग्राफिकल स्ट्रेटजी मस्ट बी फ्लेक्सिबल. कंट्री कंडीशन चेंज. लाइक व्हेन वी डिसाइड अबाउट द जोग्राफिकल स्ट्रेटजी, दैट मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल. लाइक वी हैव टू चूज द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री कंडीशन चेंज, बिकॉज एवरी टाइम द थिंग्स आर गेटिंग चेंज. And plan must allow companies to respond to new opportunities as well as withdraw from the less profitable operations. अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, पहली बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि नई इनोवेशन, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं मार्केट के अंदर. सेकेंड हम ये देखेंगे कि हमें लेस प्रॉफिटेबल जो भी अल्टरनेट्स होंगे वहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को. This is a very important diagram when we discuss about the decisions in the international business. Here we start with this. Like when we discuss about the things, external influences are there. External influences means the external factors that affects you, whether that is your pestle analysis, like political, social, economical, ecological, physical, social factors are there. Competitive environment is there. This is the main environment that affects each and everything, each and every decision when you move towards the other country. On the basis of all this environment, like what is happen in the market and what is going to happen in the market, on the basis of these factors we decide about the operations in international market. In that we decide about our objective as well as our strategy, and on the basis of all these things we decide about the means ki how we enter in that country. Okay, so when we decide about all the things, then we decide about the choice of country as well as the organization and control mechanism. Like first of all we decide about the external factor. On the basis of that we decide about the operation of the company. We decide about the objective and mission as well as the strategy, how we enter. On the basis of we decide about the means, how we enter, that is a mode, what are the function we are going to perform, as well as the alternate and overlying alternates means we have to choose the country as well as how we organize and control the mechanism in that country. Now this is a flow chart regarding how to operate. Like in this diagram the same thing is there, objectives are there, strategies are there. Now the choice of the country. Our chapter is related to choice of the country. Now we start with that, the choice of the country. When we choose the things, first of all choosing the new location, एलोकेटिंग अमंग द लोकेशन. यानी कि सबसे पहले हम नई लोकेशन को चूज़ करना पड़ेगा, फिर हम एलोकेशन करेंगे जो भी हमने लोकेशंस वहाँ पे चूज़ की हैं, और मेकिंग द फाइनल
डिसीज़न, फिर हम क्या करेंगे, फाइनल डिसीज़न वहाँ पे ले लेंगे। तो जब भी हम नई लोकेशन को चूज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्कैन फॉर द अल्टरनेटिव्स, यानी कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको स्कैन करेंगे, यानी कि हर कंट्रीज़ के अंदर हम देखेंगे कि कौन से हमारे लिए फैक्टर्स हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। सेकेंड है, जो भी अल्टरनेट हमने लिए उनको वेट एंड चूज़ करेंगे वहाँ पे, यानी कि जो भी वेरिएबल मैंने ले लिया उसको मैं वहाँ पे देखूँगी। अपॉर्चुनिटी ले लिया तो देखूँगी किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम किस तरह की है। फिर हमें डाटा को कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है और उस पर टूल यूज़ कर देने हैं। अब जब हम अपनी लोकेशन चूज़ कर लेंगे कि मुझे इस कंट्री में जाना है, फिर मैं अपने आगे फर्दर डिसीज़न लूँगी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैन फॉर द अल्टरनेट करेंगे। स्कैन फॉर द अल्टरनेट क्या होता है, यानी कि वी हैव टू चूज़ द अल्टरनेटिव्स कि किस किस कंट्री में हम लोग जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर। तो स्कैनिंग टेक्निक बेस्ड ऑन ब्रॉड वेरिएबल इंडिकेट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी कितनी है और हमें रिस्क कितना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कितनी है। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया स्कैन करना, सेकेंड है चूज़ एंड वेट द वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, हर वेरिएबल को वेट करके देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले ये लिखते हैं इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट है हमारा, जो भी होस्ट कंट्री के अंदर है वो कितना इफेक्ट डालेगा अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके पास है। मार्केट साइज़ आपका कितना है, करंट डिमांड आपकी कितनी है, मार्केट साइज़ एंड फ्यूचर सेल कितनी है, जीएनपी कितना है उस कंट्री का, पॉपुलेशन कितनी है, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट कितना है। ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, कितना ईजी है, कंपेटिबिलिटी है ऑपरेशंस की उस कंट्री के अंदर। देखो, जब भी हम बात करेंगे कि कंपनी हमारे जो कंट्री है नियर बाय है, सेम लैंग्वेज है, कल्चर उसका सेम है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लेके चलेंगे जब भी हम किसी भी कंट्री को वहाँ पे चूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कॉस्ट हमारा कितना आएगा, रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स जो हमारी आ रही है वो कितनी है, हम कितने सिक्योर हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं जब हम बाहर जा रहे हैं, टैक्स का क्या वेटेज वहाँ पे रहेगा। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल जो हम स्टडी करते हैं हम कहते हैं रेड टेप, यानी कि गवर्नमेंट की कितनी बाउंडेशन है उस कंट्री के अंदर। एक तो हो गया ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी हमने वेरिएबल यहाँ पे लिए। ठीक है, लाइक दिस हमने यहाँ पे डिसाइड किया, यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं। अब हम देखेंगे कि रिस्क कितना है मार्केट के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो रिस्क भी रहेगा। पहली चीज़ हम मेज़र करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कि कितना रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। इंश्योरेंस कितना हम करा सकते हैं जिससे कंपनी का रिस्क कम हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरली हैव ग्रेटर रिस्क दैन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिस्क होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव रिस्क हमारे पास कितना है, यानी कि जो कम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, कितनी उनकी एडवांटेज है मार्केट के अंदर, उनका लोकेशन, कितने सप्लायर्स उनके हैं, कितने बायर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, क्लस्टर ऑफ कम्पिटिटर, ये सारी की सारी हम स्टडी करेंगे। सेकेंड रिस्क जो होता है मॉनेटरी रिस्क होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हमारा जो इन्वेस्टर वांट्स सम होल्डिंग टू बी इन लिक्विड इवन विद द लो रिटर्न, तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेके चलेंगे। पॉलिटिकल रिस्क हमारा कितना है, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है, अब हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिए तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें डाटा को कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज वहाँ पे करना है, यानी कि हमने देख लिया अपॉर्चुनिटी कितनी है, हमने देख लिया रिस्क कितना है, अब हम क्या करेंगे, कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं डिसीजन मेकिंग की वो कम हो जाएंगी। नैरो द अल्टरनेटिव दे कंसीडर, यानी कि जो अल्टरनेट हम लेके चले हैं उसके अंदर हम एनालाइज कर पाएंगे, नैरो कर देंगे उन्हें, ठीक है, और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को असेस कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया और एनालाइज कर लिया। अब जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी वहाँ पे, क्योंकि रिसर्च डाटा के साथ तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं रहेगी वहाँ पे, इनएक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डाटा है वो कलेक्ट करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो कहेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, लिमिट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, इकोनॉमिक फैक्टर हम वहाँ पे लेके चलेंगे, जो हमने पब्लिकेशन हुआ है डाटा का में भी वहाँ पे मिसलीड हमारा हो जाए। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट क्रिएट्स इनएक्यूरेसी इन द मार्केट एज वेल एज बायसनेस इन द मार्केट।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कंपेयर नहीं कर पाते, जैसे एक्सचेंज रेट है, दैट इज़ अ मेन फैक्टर, कहीं ना कहीं उसको लेके प्रॉब्लम हमें वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि करेंसी का कन्वर्जन चलता ही रहता है, दैट इज़ नॉट अ स्टेबल थिंग। ठीक है। अकाउंटिंग रूल हमारे डिफर हो सकते हैं, कलेक्शन का मेथड हमारा डिफर हो सकता है, तो कई चीज़ें हैं जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स है, स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट है, सर्विस कंपनी हमें वहाँ पे दे रही है, गवर्नमेंट एजेंसी हमें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज़ हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, हर हम कहेंगे कि कंपनी या इंडस्ट्री का वहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन आपको मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्विस कंपनीज़ हैं, इंटरनेट है, ये सारे कंसर्न हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्या करना है, अब हमने देखो फर्स्ट स्टेप किया, स्कैन फॉर द अल्टरनेट किया हमने, उसके बाद वेट का वेरिएबल किया, उसके बाद हमने कलेक्शन ऑफ डाटा किया, हमने प्रॉब्लम्स देखी हमें क्या क्या आएंगी। अब क्या करेंगे, हम अपने टूल्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे। टूल्स का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे एनालाइज करेंगे अब जितने भी हमने वहाँ पे चीज़ों को लिया है। सबसे पहला टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ग्रिड को हमने यूज़ किया है। ग्रिड के अंदर हम क्या लेंगे, जितनी भी एक्सेप्टेबल है और जितनी भी अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है हम उनको लेंगे, उनके बेसिस पे हम कंट्रीज़ को रैंक कर देंगे लाइक दिस। इसके अंदर हमने एक ग्रिड बना लिया है। ग्रिड के अंदर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे वेट लिया है और कंट्रीज़ ली हैं 1 2 3 4, ये हमने 4 कंट्रीज़ वहाँ पे ले लिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स ले लिए। अब देखो हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया कि 100% ऑनरशिप अलाउ है या नहीं है, हमने वहाँ पे कंट्रीज़ ले ली 1 2 3 4। अब फर्स्ट कंट्री के अंदर अनअक्सेप्टेबल है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है। इसी ढंग से हमने सेकेंड वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया, साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड, डायरेक्ट कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, टैक्स कितनी आएगी, तो हमने वहाँ पे 1 to 4 वहाँ पे उन्हें नंबरिंग देना शुरू कर दिया। देखो हमने वेट दे दिया 0 to 5 साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पर हमने वेटेज दे दिया डिफरेंट कंट्रीज़ को। ऑन द बेसिस पे हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया कि आउट ऑफ दिस 4 कंट्रीज़ कौन सा अल्टरनेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स हमारे पास सही रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कंट्री रिस्क मैट्रिक्स, हम वहाँ पे बनाएंगे। हम लेके चलेंगे कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितना हमारे पास रिस्क है। लाइक दिस। इसके अंदर हमने क्या लिया है, हमने कंट्री रिस्क मैट्रिक्स लिया है। एक साइड हमने अपॉर्चुनिटीज़ ले ली हैं और एक साइड हमने रिस्क ले लिया। हम कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा जो रिस्क है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कम है लेकिन हमारा रिस्क भी कम है, हमारा रिस्क ज़्यादा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। हम इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो हमारा रिस्क यहाँ पे कम है और हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पे कम है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा रिस्क ज़्यादा है और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चूज़ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारी जो रिस्क है वो कम है हमारा, और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा है, तो हम इस साइड की मार्केट्स को वहाँ पे चूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स हमने बना लिया। दिस इज़ द सेकेंड मेथड कि हाउ वी यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मेथड हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमने ग्रिड किया, सेकंड अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स हमने वहाँ पे यूज़ किया, थर्ड हम करेंगे कंट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपनी स्ट्रेंथ। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो कंपनी का स्ट्रेंथ है यहाँ पे हाई है, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे लो है। सेकंड साइड हमने लिया है कंट्री अट्रैक्टिवनेस, यहाँ पे लो है, मीडियम है, हाई है। अब इस पॉइंट की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि कंपनी की जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कंट्री अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे कम है। तो हम अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पे बनाएंगे। इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो हमारा जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है कंपनी का, लेकिन कंट्री अट्रैक्टिवनेस भी ज़्यादा है जिस कंट्री में हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों ही चीज़ें हमारी मिड के अंदर आ जाती हैं, तो हम इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस पॉइंट के अंदर हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन कंट्री जिसमें हम जा रहे हैं उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस है, तो हम डोमिनेट करेंगे, जॉइंट वेंचर या डी इन्वेस्ट वहाँ पे जाके कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कम है लेकिन जो हमारा कंट्री अट्रैक्टिवनेस है वो भी हमारा कहीं ना कहीं लो है, दोनों ही पॉइंट हमारे यहाँ पे लो हैं। अब यहाँ पे हमें डिसीज़न लेना है, या तो हम हार्वेस्ट करेंगे या डाइवेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट होता है
कि हमने इन्वेस्ट करके देखा और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। डाइवेस्ट में होता है हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने 3 ग्रिड की यहाँ पे बात कर ली। फर्स्ट हमने बात की यहाँ पे 3 टूल्स की हमने बात कर ली। फर्स्ट ग्रिड, सेकेंड अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क मैट्रिक्स, एंड थर्ड इज कंट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपनी स्ट्रेंथ। अब हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है, देखो अब हमने let's take a small revision regarding the things we have discussed today। देखो हमने ये डायग्राम डिस्कस किया। अब इसमें जितने भी ये 4 पॉइंट हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। चूजिंग द बेस्ट लोकेशन, यानी कि हमने चूजिंग द बेस्ट लोकेशन में क्या किया, स्कैन किया अल्टरनेट्स को, वेट किया उन्हें, कलेक्शन ऑफ डाटा किया और टूल्स हमने यूज़ कर दिए। हमने 3 टूल यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब हम फर्दर डिसीजन लेंगे ये वाले। अब हम बात करते हैं एलोकेशन अमंग द लोकेशन। अब हमने लोकेशन चूज़ कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स। अब हम बात करेंगे री इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हार्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वॉल्व द रिप्लेसिंग डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट और एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि री इन्वेस्ट करना। अब हमने जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया, वी आर हैविंग अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर, तो हम वहाँ पे दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हार्वेस्टिंग क्या होता है, अगर हमें बेटर अल्टरनेट वहाँ पे नहीं मिला है, हम वहाँ पे उसे क्लोज करेंगे और हार्वेस्टिंग करना वहाँ पे शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम या तो ये डिसीज़न लेके चलेंगे कि अब हमें क्या करना है। सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लोकेशन। अब हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लोकेशन। हम फिगर आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाएंगे। या तो हम डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे करेंगे, कंसंट्रेट वहाँ पे करना शुरू कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस अल्टरनेट। अब ये सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद वी आर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन फॉर द कंपनी। फाइनल डिसीजन के अंदर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे लेके चलेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, कितना टाइम एंड कॉस्ट हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये वाला बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस मार्केट फैक्टर, वेदर वी डाइवर्सिफाई द थिंग्स और वेदर वी कंसंट्रेट, यानी कि हमें एक ही मार्केट के अंदर रहना है या कई मार्केट के अंदर जाना है। अगर हम कहते हैं कि हमें ग्रोथ रेट हमारा हाई होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, तो हम वहाँ पे यानी कि अगर ग्रोथ रेट ऑफ ईच मार्केट की हम बात करें तो हम कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, हम वहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं हमारा सेल्स का स्टेबिलिटी वहाँ पे होना चाहिए तो हम कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा। कम्पिटिटिव लीड टाइम है तो हमें वहाँ पे लंबा टाइम वहाँ पे चाहिए कहीं ना कहीं। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी काम किया उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहा, जैसे हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया, पब्लिसिटी हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, नीड फॉर प्रोडक्ट अडेप्टेशन की हम बात करेंगे तो हम एक ही जगह चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में तो हम कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, अगर हम अपना लैंग्वेज है यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर अडेप्टेशन कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑफ स्केल करेंगे तो हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हमें उन्हें सॉर्ट आउट करना है तो वहाँ भी कंसंट्रेट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द कंट्री सिलेक्शन, कि हम कंट्री को कैसे सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट। Thank you. Thanks a lot. Hope you like this video.